think I'm visible to everyone properly? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Now the thing is that some people are still not starting the videos. I would request once again to start the videos. कुछ लोग अभी भी वीडियो चालू नहीं कर रहे, तो वीडियो चालू कर लो. The most important, okay, the most important thing of online lecture is video has to be started. Okay, if you are not starting the video, then there should be a strong reason for not starting the video. Okay, so you have to convey me the reason why you are not starting the video. तो चीजों को ध्यान रखो. अगर वीडियो नहीं चालू कर रहे हो तो क्यों नहीं चालू कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताना बहुत जरूरी है. ठीक है. ओके, so maximum everyone has started the video, only 2-3 people are there. Okay, fine. Chinmay, I would request you to start the video or else you'll be getting a call. Okay, Chinmay is there. सर चालू है वीडियो. हाँ, एक और डिवाइस से भी लॉगिन हुआ है, इसीलिए मेरे को डाउट आया. 2 devices you are using, Chinmay? Okay, so fine. We'll start with the session, everyone. Okay. Okay, so first of all, welcome to Excellent Tutorials, everyone, for this online vacation batch of SSC 2021-22. Okay, this is what you have entered into. अभी तक आप लोग को डाउट में रहने की जरूरत नहीं है. As per the circular been passed in the previous days, few days before, हमने देखा एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि 9th स्टैंडर्ड का कुछ एग्जाम्स नहीं है and they will be directly promoted to 10th standard. So yes, you all have entered into 10th standard, that is for the year 21-22. Okay, so 21-22 and SSC, what is it, what is the importance of it, क्या महत्व रखता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है. हम जो भी चीज करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज नॉट जस्ट फॉर डूइंग वी डू. हम सिर्फ करने के लिए करते हैं क्या? नहीं, उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है, कुछ ना कुछ रीजन होता है. सो वी नीड टू एनालाइज व्हाई वी आर डूइंग ऑल दोस थिंग्स. लाइक you can see over here there is a timeline of a student, है ना. एक स्टूडेंट कौन से stops I can say or journey I can say by which he travels. Okay, first of all you get into a pre-primary education. Yes, that is your nursery. Yes, senior and junior जो होता है उस फेज में तुम एंटर करते हो. Moving from there, that is the most fantastic, I think so, moment of your life. Okay, those days when you were been like kids, बहुत छोटे बच्चे होते हो और उस टाइम पे तुमको कुछ समझ नहीं रहता है और उस टाइम पे तुम पढ़ाई करने को जाते हो. And you know, lot many things have been forced to you. Like सुबह जल्दी उठना तुमको फोर्स किया जाता है. Yes, तुमको बैग लेकर स्कूल जाना फोर्स किया जाता है. And many of the times I can bet that we were not that interested. हमको इतना पसंद नहीं आता था कि हम जाए बैग वगैरह उठा के स्कूल जाए करके, है ना, क्योंकि घर का बहुत याद आता था, मम्मी का याद आता था और हम लोग जाते जाते रोते थे. Yes, this is what the phase you have been gone through in your pre-primary education. प्राइमरी में थोड़ा संभल जाते हैं, थोड़ा चीजें स्कूल वगैरह अच्छे लगने लगते हैं, टीचर्स अच्छे लगने लगते हैं. Then you get into the upper primary. Now what is upper primary? Anyone having idea upper primary क्या है करके? कैसे अभी इसको डिवाइड किया है ना, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, अपर प्राइमरी. तो तुम्हारा जो 7th and 8th है उसको अपर प्राइमरी कंसिडर किया जाता है. ओके, एंड 9th 10th जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन हो गया है. Okay, so from upper primary you go to secondary section
From secondary you go to higher secondary, that is your 11th and 12th standard, and then finally you go for pursuing degree education. So this is the phase, this is the timeline of a student. Once you complete your degree education, yes, you become eligible to face the corporate world, which is very very challenging. Yes, हम तैयार हो जाते हैं, लेकिन तुम देख रहे हो कि तुमने कितना तैयारी किया है, कितने सारे पड़ाव है जिसको पार किया है. Yes, you can see this thing. I think so. The screen is visible to everyone. है ना, सबको दिखाई दे रहा है. तुमने ये सब जर्नी कैरी किया है माय डियर स्टूडेंट्स, तुमने इसको अच्छी तरह से कंप्लीट किया है. Like you have completed certain part of it and you are going to complete the further part of it, no doubt in that. Okay, so yes, this is the timeline of the student. Okay, तो ये सब जर्नी हम कंटिन्यू करते हैं. एक स्टूडेंट कैरी करता है मीन्स एंड सक्सेसफुली कंप्लीट करता है, नो डाउट इन दैट. सो बहुत सारे इसमें हमारे यादें होती है यस इस जर्नी में, एंड ऑब्वियसली वी गेट अटैच्ड टू लॉट मेनी थिंग्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई वुड से, मैं क्या बताना चाहता हूँ तुम लोग को आज. मैं आज कुछ तुमको पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू समथिंग फ्रॉम द सब्जेक्ट इंग्लिश और आइदर फ्रॉम हिस्ट्री और फ्रॉम पीएस. मैं उसमें से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ तुमको. मैं तुमको ये बता रहा हूँ कि हम एजुकेशन को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहिए. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ everyone's in the field of education. Okay, now the most important slide, this one is my dear student, बहुत important slide है. तुम देख सकते हो कि क्या लिखा है. think differently from others. This is most important my dear students, most important. तुम बोलोगे कि सर ऐसा क्यों? तो my dear students, education is been pursued by everyone like a rat race. तुम देख सकते हो सभी लोग पढ़ते हैं, बराबर है कि नहीं? सभी लोग डिग्री हासिल करते हैं, लेकिन फिर हम क्या उनके साथ ही है क्या? हम उनसे अलग होने चाहिए, हम उनसे थोड़े अलग होना चाहिए, इसीलिए हमारा सोच अलग होना चाहिए. अब मुझे बताओ आज के डेट में कितने तो लोग रहेंगे जो काफी पढ़े लिखे रहेंगे, नो डाउट इन दैट. Yes, no doubt in that. They may be engineers, they may be chartered accountants, they may be lawyers, and many more professionals, my dear students. बहुत highly qualified लोग रहेंगे. लेकिन this pandemic situation has put all of them in a rest. ये परिस्थिति की वजह से वो सब लोग क्या हो गए हैं? अपने अपने घर पे बंद हो गए हैं, बराबर है कि नहीं? Yes. So your life is always going to be challenging. You have to admit this thing. Okay, मतलब लाइफ ऐसा नहीं है कि सीधा एक सेम स्ट्रेट लाइन में चलते रहेगा विदाउट एनी स्पीड ब्रेकर्स और विदाउट एनी पॉटहोल्स. तुम रास्ते पे जाते हो तो रास्ते पे तुमने देखा रहेगा ना, कभी कभी स्पीड ब्रेकर से टकराते हैं, कभी कभी गड्ढे आते हैं. तो द जर्नी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो लाइक द सेम. ओके, जर्नी ऑफ लाइफ इज ऑल्सो लाइक द सेम. कभी कभी पॉटहोल्स मिलेंगे, कभी कभी स्पीड ब्रेकर्स मिलेंगे, यस, एंड कभी कभी एकदम स्मूथ अच्छा रोड मिलेगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, हमको क्या करना है? जब कभी पॉटहोल्स या जब कभी स्पीड ब्रेकर्स मिलते हैं, हमको अपने आप को ऐसे बनाना है कि उन छोटे छोटे पॉटहोल्स और स्पीड ब्रेकर्स से हमको डरना नहीं है. We have to make ourselves understand, we have to make ourselves believe that we can overcome these situations with our tact and with our wisdom. हम हमारे wisdom और tactfulness से हम ये सब चीजों को overcome कर सकते हैं. This is what you have to understand. Okay, that will make you think differently from others. Okay, I hope you got what I'm trying to convey you. Yes. So next question and the biggest question, why to study, sir? क्यों पढ़ाई करें? क्या फायदा पढ़ के? किसका भला हुआ है दुनिया में पढ़ाई करके कि हम पढ़े? This is the biggest question there in the minds of the students, and I can understand. Okay, but trust me my dear students, mark my words, कहीं तो लिख के रखो, चाहिए तो कहीं तो लिख के रखो कि सर आज जो बोल रहे हैं वो चीज का इम्पोर्टेंस तुमको कुछ सालों में दिखाई देता है कि नहीं करके. ओके, many of the people, see, already the pandemic has affected the education system very badly. Okay, very badly. Okay, no doubt in that the education system has been disturbed very badly. But are we going to take it on ourselves also? That is the question. मेरे बोलने का मतलब ये है कि हाँ, सिस्टम को अफेक्ट हुआ है
तो वो इफेक्ट क्या मैं मेरे ऊपर भी होने देना चाहता हूँ, चाहती हूँ, या मैं इससे थोड़ा अलग रहना चाहती हूँ? दैट इज द क्वेश्चन. ओके, मीन्स सिर्फ पढ़ाई करना स्टूडेंट्स के लिए इट्स लाइक ईटिंग बिटर गॉड. पढ़ाई करना ये हमको करेला खाने जैसा लगेगा. सच बोल रहा हूं मैं, बरोबर है कि नहीं? मतलब देर आर एक्सेप्शंस, नो डाउट इन दैट. आई एम नॉट सेइंग कि नहीं नहीं सबके सब ऐसे ही है, पढ़ाई से भागेंगे, नहीं. देर आर फ्यू एक्सेप्शंस, नो डाउट इन दैट. कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंस से पढ़े, वो खुद से करते हैं. ओके, एंड दे बिकम द स्टूडियस. बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल से नहीं ना, पैंडेमिक है, नहीं पढ़ने का है, कुछ समझ में नहीं आता है, हम क्यों पढ़े, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. The reasons are many for those people, and the number of people like giving excuses are also more, है ना? ऐसे बहाने देने वाले लोग भी बहुत ज्यादा है. तो क्या हम इससे दूर रहे या फिर हम इस चैलेंजेस को ओवरकम करें? ये डिसीजन किसका है? ये हमारा डिसीजन है. ये चॉइस किसका है? ये हमारा चॉइस है. ओके, सो व्हाई वी हैव टू स्टडी? So tell me, my dear students, are we studying just for showing that marksheet to everyone? मुझे बताओ, वो मार्कशीट दिखाने के लिए हम पढ़ते हैं? मुझे बताओ, तुमने तुम्हारे सिबलिंग्स को देखा रहेगा, तुम्हारे एल्डर्स को देखा रहेगा. यस, यू मस्ट हैव सीन. ओके, जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट. ओके, एल्डर ब्रदर रहेंगे, सिस्टर रहेंगे. मुझे बताओ, उन्होंने जो भी डिग्री परस्यू किया रहेगा, यस, वो डिग्री परस्यू करने के बाद में how many days they have been like carrying those mark sheet and showing to everyone? देखो मैंने 10th में 90% लाया, देखो मैंने 10th में 90% लाया. No, that is just few days event. एक कुछ दिनों का प्रोग्राम होता है, कुछ दिनों का इवेंट होता है, है ना? मिला 90% अबाव तो पेड़ा लिया, सबको बांटा वगैरह, सब खुश, हम भी खुश. वेरी प्राउड मोमेंट, एवरीथिंग इज देयर. बट टेल मी, इज दैट गोइंग टू बी कैरिड लाइफ लॉन्ग फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन? नहीं, एक मोमेंट के बाद में उसको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है. हम हमेशा हमारा एसएससी का रिजल्ट लेके घूमते हैं? नहीं. हम हमेशा हमारा 12th का रिजल्ट लेके घूमते हैं? नहीं. So we students, my dear students, should have this mentality, should have this psychology that whatever we are studying, we are not studying for getting a mark sheet printed with a marks. हम इसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं to pursue knowledge and to be successful. Getting me? हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, हम नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इसलिए हम पढ़ रहे हैं. ये चीज को ध्यान में लाओ, माय डियर स्टूडेंट्स. वी आर नॉट स्टडिंग टू गेन सम XYZ टाइप ऑफ मार्कशीट एंड टू शो द वर्ल्ड कि हमारे पास देखो एक मार्कशीट है करके. नहीं, दैट डजंट काउंट दैट मच. मुझे बताओ, I'll talk to you very frankly. Okay, in the current scenario, you must have seen that many students have been passed and promoted. Okay, this is not happening only at the lower level. मतलब ठीक है कि नर्सरी में फर्स्ट टू 10th या फर्स्ट टू 9th तक भी लोगों को पास प्रमोट किया. We can accept and digest this thing. But imagine, my dear students, even the students of ग्रेजुएशन लेवल पे भी लोगों को पास प्रमोट किया गया है विदाउट एनी एग्जाम्स. Even at the engineering level, students have been passed and promoted. Why they have not taken this decision with respect to medical stream? मुझे बताओ, बिना एग्जाम के मेडिकल के स्टूडेंट्स को क्यों नहीं पास किया? Because that is very very serious and sensitive field. बहुत ज्यादा सेंसिटिव फील्ड है वो, है कि नहीं? उसके साथ मजाक किया जा सकता नहीं है. So they know where they can take the things lightly and where they have to be very much serious, है ना? क्योंकि एक डॉक्टर जो होता है, मेरे स्टूडेंट्स, he treat a patient with his knowledge and not by showing his mark sheet और रिपोर्ट कार्ड. तुम किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो उसको क्या बोलते हो? तुम्हारा 10th का रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, तुम्हारा डिग्री का रिपोर्ट कार्ड दिखाओ. नहीं, we go to a doctor because we know that so and so particular doctor can cure us, can treat our illness much better than anyone. That is the reason we go to such a doctor.
हम कोई डॉक्टर को उसके मार्कशीट देख के नहीं जाते, वरना सब अपने क्लिनिक के बाहर बड़े बड़े मार्कशीट ही टंगाते थे। कभी देखा है ऐसा? कभी नहीं होता है। यस, so understand the importance of education, understand the importance of studying, my dear students. It is not just to get a mark sheet, it is not just to get a report card, but to pursue knowledge. Okay, and we together can achieve this. It is not like a like one sided activity nahi hai. One sided matlab unilateral nahi hai, it's a bilateral process. Okay, unilateral means what? I'll be trying, my team will be trying to impart you good knowledge, but if you are not taking, if you are not asking more and more, then there will be something lacking. Okay, so it has to be in an interactive way, it has to be in a participative way. हम आगे उसके ऊपर बात करेंगे. Okay, so I hope you are clear with why to study. Yes, this thing is clear to you people, not just to show a mark sheet to any XYZ person, but to pursue a very good knowledge, to pursue wisdom, and to be successful in your life. That is the purpose of your study. Okay, so next, my dear students, we have to set some goals in life. Okay, हमारे जीवन में कुछ goals होने चाहिए. Goals means, I think you understand, there should be some targets in our life, है ना? कुछ जो target होंगे वो short term होंगे, कुछ जो होंगे वो long term होंगे. Yes, like currently you are in 10th standard. So what is the most important goal for you? That is completing your 10th standard, pursuing the knowledge in the 10th standard. That is your short term goal. Yes, and what will be a long term goal? Your long term goal, your long term vision will be like you want to become a doctor, you want to become an engineer, you want to become a lawyer, you want to become a chartered accountant, a business entrepreneur, etc., etc., etc. ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म विजन है, ये तुम्हारा दूर का विजन है. समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल है. But both you have to set simultaneously. Both has to be carried out hand in hand. ऐसा नहीं है कि सर मैं तो अभी 10th स्टैंडर्ड में हूं तो मैं आगे के बारे में क्यों सोचूं. नहीं, यू हैव टू थिंक. सोचना तो चाहिए, सोचना तो चाहिए कि मैं आगे क्या बनूं. सी डेस्टिनी हैज इट्स ओन चॉइस. हम क्या बनेंगे ये बात की बात है, लेकिन हम क्या बनना चाहते हैं ये तो हम सोच सकते हैं ना. बराबर है कि नहीं? से फॉर एग्जाम्पल यू हैव गॉन टू योर स्कूल. ओके, तुम तुम्हारे स्कूल गए हो, ठीक है. अब स्कूल से छूट के जब आ रहे हो तुम घर पे, तो यू आर फीलिंग वेरी हंग्री एंड यू वांट टू हैव समथिंग टू ईट. तो तुम सोच तो सकते हो ना कि मम्मी ने घर पे क्या बनाया रहेगा. हाँ, मुझे ये खाने का है. घर पे जाके क्या मिलेगा वो बात अलग है ना. तुम सोच के आ रहे हो कि मस्त मम्मी ने पिज्जा बनाया रहेगा, है ना, या तो मैगी मसाला बनाया रहेगा एकदम टैंगी टोमेटो केचप के साथ में, या तुम सोच रहे हो कि मम्मी ने मोमोज बनाया रहेगा, पास्ता बनाया रहेगा. ऐसा कुछ तो तुम बहुत इंटरेस्टिंग सोच रहे हो, और तुम घर पे गए और मम्मी ने बनाया बैंगन का भरता. So are you going to stay hungry? Are you going to starve for that day? उस दिन तुम भूखे रहने वाले हो या तुम वो खाओगे? Obviously you are going to eat anyway ना. Yes or no? But think Yes. a particular thing, nobody has stopped you. किसी ने तुमको उस चीज से रोका नहीं है कि तुम ये सोचो मत करके, है ना. तो in the same way, my dear students, you have to set certain goals in your life. Okay. अब तुम बोलोगे सर गोल क्यों सेट करना है, गोल क्यों सेट करना है कि नहीं. गोल सेट करेंगे तो हम उस गोल के अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे. समझता है क्या ये बात? उस गोल के अकॉर्डिंगली हम स्ट्रैटेजीज बनाएंगे, हम प्लानिंग करेंगे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली हम उसको रीच करने का कोशिश करेंगे, और अल्टीमेटली हम रीच भी हो जाएंगे. व्हाई? बिकॉज वी हैव सेट आवर गोल्स फार फार बिफोर. हमने पहले से ही सोच लिया था, ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम, माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव टू बी वेरी मच फ्लेक्सिबल. वी हैव टू बी वेरी मच डायनामिक इन अवर थॉट्स. सर ये क्या बोल रहे हो, फ्लेक्सिबल, डायनामिक? तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज पर द नीड ऑफ द टाइम वी हैव टू चेंज, वी हैव टू अडेप्ट. ठीक है, क्या बात कर रहे हैं सर? ठीक है, आगे बात करूंगा उसके ऊपर. अभी फिलहाल ये देखो, प्लानिंग मैंने बोला, हमको प्लानिंग करना जरूरी है ना. सेटिंग द गोल्स मीन्स वी हैव टू प्लान. तो एक बेसिक लेवल से शुरू करते हैं, बहुत ही स्मॉल लेवल से शुरू करते हैं. तो वी शुड हैव टू डू लिस्ट. टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट मतलब क्या, कि हम डेली बेसिस पे नोट करें कि हमको क्या क्या एक्टिविटी करना है.
दिस इज अ वेरी गुड हैबिट माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, दिस इज आज हमारा पहला ओरिएंटेशन लेक्चर है एंड आई एम गिविंग यू सम हिंट्स, और ये हिंट्स को तुम क्या करोगे, फॉलो करने का कोशिश करो, ठीक है. एंड ऑल्सो फॉर योर नॉलेज, ये वीडियो तुमको यूट्यूब पे अपलोडेड रहता है एंड यू कैन एक्सेस टू दिस वीडियोज एज मेनी टाइम यू वांट. ओके, एंड फर्दर मोर डिटेल्स आर देयर. ऐप के बारे में भी बताना है, सब धीरे धीरे बताता हूँ मैं, ठीक है. तो फिलहाल तो ये जान के लो कि प्लानिंग इज व्हाट माय डियर स्टूडेंट्स, वी शुड प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट. टू डू लिस्ट मतलब ये मुझे करना है. यस, आई हैव टू डू दिस ऑल थिंग्स. तो ये लिस्ट क्या होता है, एक छोटा सा नोटपैड रहता है, उसपे हम रोज का हमको क्या क्या काम करना है इसको नोट करेंगे, और जैसे ही वो काम हो गया ना उसको हम टिक करेंगे. दिस इज अ वेरी गुड हैबिट. आई यूजुअली डू इट ऑन माई मोबाइल ओनली. मोबाइल पे करता हूँ, नोटपैड होता है उसमें टू डू लिस्ट होता है, मैं रोज का, मुझे इवन बैंक जाना है, दुकान जाना है, कुछ भी काम करना है, आई जस्ट मेक अ नोट ऑफ इट. अच्छे से नोट बनाता हूँ और फटक से जैसे वो काम हो गया टिक, जैसे वो काम हो गया टिक. तो डेली बेसिस पे मेरा ये टू डू लिस्ट होता है. मुझे अगर मान के चलो कि मेरा कोई काम छूट गया ना, तो वो टिक नहीं हुआ रहता है. गेटिंग मी? if on a particular day I have missed any activity or any work, that work remains blank. So next time when I'm going to check it out, I can see कि अरे मेरा ये काम हुआ नहीं है. गेटिंग मी? तो आई कैन वर्क ऑन दैट, मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ. ऐसे माय डियर स्टूडेंट्स यू शुड हैव अ टू डू लिस्ट. ओके, यू हैव सम सब्जेक्ट्स, यू हैव सम एक्टिविटीज, लाइक तुम्हारा स्कूल शुरू हो जाएगा तो स्कूल के भी वर्क रहेंगे. इन सब चीजों को तुमको क्या करना है, लिस्ट आउट करना है. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ओके, लिस्टिंग आउट, दैट इज टू प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट. नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, कंसिडर टाइम टू बी योर मनी. मनी सर नहीं, मनी. ओके, टाइम टू बी योर मनी. ओके, टाइम इज मनी फॉर यू. बोलते हैं लोग, काफी बार हमने इसके ऊपर एसेज लिखा है, काफी बार हमने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपांशन ऑफ आइडियाज लिखे हैं. बट is it like really time is money? Yes, my dear students, for those people who earn money, it is really, time is money for them. Okay, but for you people it is more, much more than money. तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा important है. You should not waste your time, not even a single minute. Okay, every time should be productive. You should not think also that you are wasting any time. That is the most important thing. Okay, even if you're watching TV, it's not wastage of time unless and until you're watching a Cartoon Network or a Pogo channel. Okay, okay, that is also for a entertainment purpose only, but still don't think that you are wasting a time. You are entertaining yourself, you are entertaining your brain. तुम तुम्हारे दिमाग को क्या कर रहे हो, प्रॉपरली चैनलाइज कर रहे हो, फंक्शनिंग कर रहे हो, जरूरी है. तो दैट हैज टू बी डन. इफ यू आर प्लेइंग समथिंग, इट्स नॉट वेस्ट ऑफ टाइम, it is entertaining. Okay, you are just brushing up your brain, you are just like enriching your brain. तुम्हारा दिमाग उसके बाद क्या करने लगेगा, अच्छे से काम करेगा. मतलब हम सो रहे हैं तो क्या वेस्ट ऑफ टाइम है? नहीं, सोना, sleep is must for us, everyone needs sleep, it's not waste of time. Okay, waste of time is such a thing which is not required at that particular time and you're doing that. I'll repeat again. Waste of time is that which is not required to be done at that particular time and you're doing it. बात समझा क्या? मान के चलो अभी मैं तुमको ओरिएंटेशन लेक्चर दे रहा हूं और तुम्हारे सामने टीवी चालू है और तुम्हारा ध्यान टीवी पे है. क्या हुआ ये? दिस इज वेस्ट ऑफ टाइम. Yes, who is wasting the time? I am wasting the time or you are wasting the time? You are wasting the time because तुम्हारा एक आधा ध्यान यहाँ पे, आधा ध्यान वहां पे. So ना तुम टीवी ठीक से देख पा रहे हो, ना तुम यहाँ पे सेशन पे ठीक से ध्यान दे रहे हो. This should not happen. This should not happen. Okay, my dear students, ये नहीं होना चाहिए. Okay. Next, my dear students, you need mentors for guiding you people. The first and the foremost mentor of your life are your parents. हमेशा हमेशा ध्यान रखो, पेरेंट्स की बात सुनो. Yes, you can guide them, you can discuss with them. Yes, but listen to your parents the most. पेरेंट्स को सुनना ये बहुत जरूरी बात है. ऐसा नहीं कि नहीं सुनेंगे, पेरेंट्स जो बोलेंगे उसके अगेंस्ट उल्टा ही काम करेंगे,
वो सब तो नहीं होना चाहिए. Yes. So do take care of this thing that you are listening to your parents. Okay, they are the first and foremost mentor of your house. Then you must be having तुम्हारे brother रहेंगे, sisters रहेंगे, उनका बात सुनो. Yes, and then comes your teachers. तुम्हारे टीचर्स तुमको हमेशा माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉपर पाथ, प्रॉपर वे गाइड करेंगे. एंड यू should blindly obey whatever your teachers are been guiding you. Yes, you should have trust on your mentors, you should have faith on your mentors that वो जो भी कर रहे हैं वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, वो हमारे बुरे के लिए कुछ करेंगे नहीं, वो हमारे गलत कुछ करेंगे नहीं. This faith you should have in yourself. Okay, and then you can achieve success. Yes, फिर तुमको जो चाहिए वो हासिल हो सकता है. This is not only with respect to your 10th standard, my dear students. I'm not talking only with respect to your 10th standard. I'm talking this with respect to your life. तुम्हारे करियर के हिसाब से बात कर रहा हूँ. Okay, fine. So next, my dear students, be participative. The major hurdle in this online education, कि सर को मैं पूछूं कि नहीं पूछूं, टीचर को मैं पूछूं कि नहीं पूछूं. Yes, this is a major hurdle which draws back, or it is the reason why many people say that online education is not that effective. Yes, it is because of lack of interaction. हम participate नहीं करते. क्या प्रॉब्लम होता है? हमको डर लगता है. हम पहले सोचते हैं, should I ask? हमें पूछूं ये क्वेश्चन? Yes, ये ऐसा लगता है. ये पहली बार हम जब पूछते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन हमने पहली बार जब क्वेश्चन पूछा, हमको उसका आंसर मिला, तो हमको ऐसा लगता है हाँ, जब सवाल किया जाएगा तो जवाब मिलता है. तो सेकेंड टाइम वी कम टू दिस कंक्लूजन, यस आई विल आस्क, मैं पूछ सकता हूँ या मैं पूछ सकती हूँ. तो यू पार्टिसिपेट, you go for that question, you go for asking that doubt. The second time also you get a feedback, you get a response, and you get excited. Wow, कितना इंटरेस्टिंग है ये चीज, है ना. मेरे कुछ भी सवाल होते हैं, अगर मैं सामने पूछूं तो मुझे उसका जवाब मिलता है. सो इट्स सो इंटरैक्टिव, इट्स सो इंटरेस्टिंग. तो दैट इज द थर्ड टाइम यू फील इट विद इंटरेस्ट. तुम इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट करते हो और डाउट को क्लियर करते हो. The most important thing, my dear students, you have to take it into consideration. You are learning in a school, no doubt in that. XYZ school you may be learning. You find some difficulties in coping up from that, whatever education system is there in your school. And that is the reason why you come up to the classes, coaching classes. Am I right? Am I correct? Yes. कुछ तो वहां पे कमी है जिसके वजह से तुम एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं, मुझे ये क्लासेस में यहाँ पे उसका अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा. सो वी आर हियर टू 100% हेल्प एंड सपोर्ट यू पीपल. नोबडी इज हियर टू फ्राइटन यू, to beat you. Beating is not possible in this online session. I hope you can understand this thing. मारना भी है तो स्क्रीन को मारना पड़ेगा, तुमको कुछ होने वाला नहीं है. Yes, so don't be afraid of that thing, ना, है कि नहीं. So you have to be interactive, you have to be participative. कुछ भी सवाल आता है पूछना है. Okay, because that is the purpose, that is the reason why you have joined this particular institute. Excellent tutorials join करने के पीछे का reason, yes, that I should get everything clarified. मुझे कुछ भी डाउट कैरी करना नहीं है. Done? Correct? Yes. And once you have done all this thing, then you can understand, yes, I am very much confident, I am very much clear about the concepts. That confidence develops in your mind. तुम्हारे अंदर वो confidence develop होता है. So participation में no negligence, बिल्कुल भी negligence नहीं. Okay? Done? हाँ. Yes. 9th में जैसे भी किया था, जो भी वे था, remove all those thoughts, remove all those process. Okay, this is 10th standard. I'll assure you we are going to be very strict and very sincere with respect to our work. ठीक है, और dedicated रहेंगे, लेकिन student का participation is very very must. Okay, so you have to take that stand that yes sir, we will be supporting you people, we will be cooperating with the faculties. Okay,
नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन संसार का नियम है. ओके, इस कहावत का मीनिंग समझो. परिवर्तन संसार का नियम है. नथिंग इन द वर्ल्ड इज परमानेंट. ओनली वन थिंग इज परमानेंट. व्हाट? दैट इज चेंज. चेंज इज परमानेंट. ओके, बदलते रहता है परिस्थिति. लुकिंग एट द इमेज यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इट इज बीन ट्राइड टू कन्वे. बुक है. पहले नॉर्मल ट्रेडिशनल वे में लेक्चर्स चलता था एंड यू यूज टू गेन नॉलेज, बट नाउ यू आर हैविंग दैट ईयरफोन इन योर ईयर्स. वो कॉर्ड एक कान में होता है सबके, एंड योर knowledge has been like you are receiving the bookish knowledge into your mind through that chords, है ना. वो chords के थ्रू तुमको दिमाग में knowledge जा रहा है. So this is the change ना my dear students. ये थोड़ी ना पहले हम लोग ऐसा कभी करते थे. Have you ever done this thing right from your pre-primary till your 8th standard? Have you ever done this thing? No, I don't think so you have done this thing. कभी नहीं. But this is the change, and this change we have to adapt. I can understand immediately, quickly, sir, सब समझ में आ गया. नहीं पॉसिबल है. कैसे पॉसिबल है भाई? हम ये अभी अभी कर रहे हैं, अभी अभी इस तरीके से सीख रहे हैं. ओके, मैं बताता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स. जब कल्याण ईस्ट में ऑनलाइन लेक्चर शुरू करने वाला सबसे पहला क्लासेस एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स. सबसे पहला क्लासेस एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स. सबसे पहला स्कूल साई स्कूल. रीजन सिंपल है, मनी सर. यस, बिकॉज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल से भी मनी सर है, साई स्कूल में भी मनी सर है, तो ऑब्वियसली इम्पार्ट होगा, है कि नहीं. वॉट एवर आई एम लाइक डूइंग हियर, आई कैन इम्पार्ट दोज थिंग over in school also, because that is, and the authorities also understood. Now I am not a principal of Sai school, I am just a teacher, है ना, but they thought कि सर ने ये जो किया ये सही है. So this is what we should do. And once they started doing, many other people also started following them. Yes, so we started usually we used to start in the month of April 15. 15th April को हम शुरू करते थे. Okay, लास्ट ईयर हमने नियर अबाउट 7th April से शुरू कर दिया. 7th April से, because my dear students, there was an intuition that this thing may be carried for a very long time. It was just an intuition. I didn't knew. मेरा चाइना के साथ कुछ सेटअप नहीं था. मुझे कोरोना वायरस के बारे में कुछ पता नहीं था, ठीक है, कि वो इतना सीवियर हो सकता है करके. I just knew that it is a pandemic. Okay, and if you little bit Google about pandemic, you will come to know what is the seriousness of a pandemic. Okay, so अब ये भी कैसे पता चला? जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज ना. पढ़ा लिखा हूँ इसीलिए समझा ना, है कि नहीं. तो आई हैड अ विजन दैट दिस कैन गो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड इट वेंट फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. हम वेट करते रहे. वी वर इन ऑनलाइन लेक्चर्स फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स. करते गए. थोड़ा बहुत बीच बीच में ऐसा लगता था कि हाँ शायद शुरू होगा, अगस्त में शुरू होगा, नवंबर में शुरू होगा. फाइनली वी थॉट कि दिसंबर में तो शुरू होगा, और सबसे फाइनली हमने सोचा जनवरी में तो होगा ही होगा. अब तो नया साल आ गया, 2020 खत्म हो गया, 21 आ गया. स्टिल देयर वाज नो पॉजिटिव साइंस माय डियर स्टूडेंट्स. बट हमने लास्ट ईयर के बैचेस को जनवरी 21 से शुरू किया था ऑफलाइन लेक्चर्स, एंड ऑल वर वेरी हैप्पी because there was continuous lectures been conducted for 2 months with all the precautions been taken, and everything was going smoothly. Then in the month of March, my dear students, we started with our third prelims. हमने third prelims को शुरू किया था, and from mid of March onwards, we all came to know that there is a surge in the corona cases, है ना. तो वो cases बढ़ने की वजह से फिर हमने क्या किया, उसको एग्जाम्स को खत्म करके हमने वाइंड अप किया, मतलब बंद किया लेक्चर्स को. ऑफलाइन लेक्चर्स वर बीन पुट टू अ हॉल्ट बिकॉज लास्ट ईयर 2020 में व्हेन वी कंडक्टेड द एग्जाम, द लाइक देयर वाज नो न्यूज. कोई न्यूज नहीं था कि बच्चे लोगों में किसी को या बच्चों के किसी पेरेंट को कुछ पॉजिटिव वगैरह होने का न्यूज ही नहीं था. दिस ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च देयर वाज मेनी न्यूज कमिंग टू मी, सर पॉजिटिव, सर पॉजिटिव, सर पॉजिटिव, बहुत न्यूज आए. तो I sensed the situation is not good, so it is better that we should put a comma, है ना, यहाँ पे थोड़ा पॉज लेते हैं. तो हमने फिर पॉज लिया, एंड
pause लेकर online lectures were going on, and all of a sudden then you know what happened is the education department came up with the decision that they are not going to conduct the traditional board exam. Okay, जैसे board exam होते थे वो नहीं conduct कर सकते. But trust me, the exam preparation was to the edge. To the edge, my dear students. In schools, all the stationery have been arrived. Answer paper, barcode, holocraft, even the hall ticket. क्वेश्चन पेपर्स प्रिंट हो गया, हॉल टिकट तक आ गया, खाली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था. Such edge of preparation was there, but because of the sudden surge in the COVID cases, it was to be stopped. There was no alternative left. कुछ बचा नहीं था, नई रिस्क उठा सकते थे. So that was been the reason. So again I come to the same thought, my dear students. मैं again तुमसे वही प्रश्न पूछना चाहता हूँ, वही क्वेश्चन रेज करना चाहता हूँ कि क्या हम लोग एक्सक्यूज देकर हमारे पढ़ाई को बंद करके रखे, या फिर हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करके हमारे नॉलेज को, हमारे लाइक विजडम को एनहांस करें. दैट इज माय क्वेश्चन, एंड आई थिंक सो मेनी ऑफ यू विल आंसर इट इन अ पॉजिटिव वे, है ना. तो दैट इज द अडैप्ट द सिचुएशन. परिस्थिति के हिसाब से क्या करो, बदलो अपने आप को. यस, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, मॉनिटर योर ग्रोथ. यू हैव टू चेक योरसेल्फ. ये क्या है, ये 0 नंबर, देखो एक छोटा सा पौधा दिख रहा है ना, छोटा सा पौधा, फिर 0 2, फिर ये पौधा थोड़ा क्या हो गया, बड़ा हो गया, फिर 3rd, फिर ये पौधा और बड़ा हो गया, और 4th में देखो थोड़ा और बड़ा हो गया, है ना. अब ये बढ़ते बढ़ते ये जब तक एक बहुत बड़ा पेड़ नहीं हो जाता, तब तक तुमको क्या करना है, अपने आप को मॉनिटर करना है, एनालाइज करना है. आर यू प्रोग्रेसिंग? Are you finding some change in your way of approach? Are you feeling better attending lectures at ETNX? All these things you have to monitor. And if at all you feel sometimes, देखो ऐसा है क्या कि ये ग्राफ डायरेक्ट ऊपर 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 ही है, ऊपर 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 ही है क्या? नहीं. तुम when you are traveling from 0 1 to 0 2, yes, you can see that there is some downside, है ना, डाउनसाइड दिख रहा है, लेकिन वो डाउनसाइड में भी हमारा ग्रोथ है. दैट इज व्हाट दिस इंडिकेट्स. ओके, तो दैट यू हैव टू चेक. इवन इफ देयर इज सम डाउनसाइड और देयर इज सम slack, but still there is some growth or not, that you have to see, and that you can एनालाइज विथ मी. मुझसे बात कर सकते हो उसके ऊपर कि सर मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है, ऐसा ऐसा फीलिंग आ रहा है, मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकती हूँ. दैट इज व्हाट यू हैव टू डू, मॉनिटर योर ग्रोथ. ओके, moving to the third part, my dear students, then you can see once you have discussed these things with a mentor, with your sir, obviously there will be a surge, there will be an increase in your growth. Okay, tum obviously grow karoge. Yes, and this will keep on going and going. So my dear students, with such kind of mentorship and with such kind of guidance only, we have achieved some great results which has never been achieved by any of them in Kalyan East. That's why we say it has to be the historic result of Kalyan East. That is the topper of SSC 2019, जिसमें Oshika Chakravarti, she was from St. Thomas School, okay, and she scored 97%. Now, why we call it as to be historic? Because this was the year when there were no internal marks. Can you imagine, my dear students? 20 मार्क्स जो स्कूल से मिलता है हर एक स्टूडेंट को, सबको पता है कि नहीं, 20 मार्क्स हर सब्जेक्ट का मिलता है, ओवरऑल 20% मिलता है. 2019 में देयर वर नो इंटरनल मार्क्स, there were no internal marks, and this girl was able to score 97%. Many people criticized us before this. बोले कि एक्सेलेंट ट्यूटोरियल्स में बच्चे पढ़ाते हैं. पता नहीं, मुझे देख के मैं क्या बच्चा लगता हूँ मुझे नहीं मालूम, बट पीपल यूज्ड टू से कि एक्सेलेंट ट्यूटोरियल्स में बच्चे पढ़ाते हैं करके. नो, मैं बच्चा नहीं हूँ एक्चुअली, आई एम अ वेरी ग्रोन अप पर्सन. कभी कभी बच्चों जैसा हरकत करता हूँ, बिकॉज बच्चों के साथ रहता हूँ तो बच्चों जैसा हरकत होता है, बट आई एम नॉट अ किड, है कि नहीं. देन दिस रिजल्ट मस्ट हैव शट द माउथ ऑफ दोस पीपल. जिन लोगों का विचार वैसा था उनका बोलती बंद. दिस इज द रिजल्ट ना, माय डियर स्टूडेंट. रिजल्ट कोई खरीद के नहीं ला सकता, है कि नहीं. And this is the result when there was no internal marks.
मतलब ऐसा भी नहीं कि मनी सर ने सेंट थॉमस के प्रिंसिपल के साथ फादर के साथ सेटिंग लगाया और 20% ओर्शिका को दिलाया, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि इंटरनल मार्क्स ही नहीं था. Whatever marks she has got, she has scored it in the written exam only. English 100 मार्क्स का पेपर था, 97 मिला. मैथ्स 100 मार्क्स का पेपर था, 98 मिला. साइंस 100 मार्क्स का पेपर था, 98 मिला. एसएस 100 मार्क्स का पेपर था, 97 मिला. नाउ यू विल से कि सर आप हमको क्यों दिखा रहे हैं ये चीज. I am just want to convey to you people that scoring such marks is possible. That is the first reason. It is possible by us. हम ये स्कोर करके दे सकते हैं. This is possible from us. We have done it in the past. We have done it in the past. Okay. My dear students, we have the papers of ओशिका चक्रवर्ती. ओशिका चक्रवर्ती का जो बोर्ड का पेपर्स है वो हमारे पास है. बहुत मेहनत करके उसका जो भी रिटर्न पेपर था उसका जेरोक्स हमने लाया है. And obviously we give these papers to our students of SSC. जो भी होते हैं 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम देते हैं पेपर. क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है. सबसे इंपॉर्टेंट किस तरीके से पेपर लिखेंगे तो 98-97 मार्क्स मिलते हैं इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में. दैट वी कैन कम टू नो. वी मस्ट हैव नेवर हर्ड इंग्लिश में 97. वो शायद मेरे ख्याल से 5वीं 6वीं में मिलता रहेगा, 5th 6th 7th में मिला रहेगा, बट दिस इज टोटली डिफरेंट. दिस इज नॉट योर 5th स्टैंडर्ड or 6th स्टैंडर्ड. दिस इज 10th स्टैंडर्ड. यू हैव एम्पल थिंग्स टू स्टडी एंड अ डिफरेंट टोटल पैटर्न ओवर हियर. सो बहुत कुछ है यहाँ पे जो अलग है, बट स्टिल इफ वी आर एबल टू गेट एंड स्टिल इफ वी आर अचीविंग दैट, इट इज हिस्टोरिकल. यस. सो यस, ओशिका चक्रवर्ती का पेपर तुमको दिया जाएगा फॉर रेफरेंस. यू कैन गो थ्रू ऑल द सब्जेक्ट पेपर्स राइट फ्रॉम इंग्लिश टू योर एसएस. सब सब्जेक्ट के पेपर्स तुमको दिए जाएंगे फॉर रेफरेंस. तुमको उसमें हेल्प मिलेगा कि कैसे कैसे क्या पॉइंट्स लिखने हैं, किसको हाईलाइट करना चाहिए, राइटिंग स्किल कैसा होना चाहिए, सब चीजों का तुमको नॉलेज मिलेगा. ओके, तो दिस इज द मोस्ट एडेड एडवांटेज. ओके, व्हाई, क्यों हम लोग मतलब ऐसा कर पाते कंसिस्टेंटली. ओके, नेक्स्ट ईयर माय डियर स्टूडेंट्स internal marks as I, and there was not that increment in the percentage. Karan Singh 95.40, that is he was first in size say ATNX and second in Sci School. जो फर्स्ट आया था साई स्कूल में he was 96%, तो 0.6% से वो आगे था. Again you can see the marks in maths and SS. It is 98 and 95. Scoring anything above 90% is like touching the face of God. क्या बोल रहे हैं सर? Scoring anything above 90% is like touching the face of God. Yes or no? तुमने देव दर्शन कर लिया my dear students अगर तुम 90 के ऊपर आ रहे हो तो. Okay? Yes. Fine. So that is our orientation lecture for today. I hope whatever I wanted to convey to you people has reached to you people properly. And यस, प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म होता है. ओके, और अब हम करते हैं इंटरैक्शन. इंटरैक्शन मतलब वार्तालाप, बातचीत करना है. तो वीडियोस चालू सबके, डेटा बेटा मत बचाओ ज्यादा, ठीक है. और आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, वी in our backhand will straight away call your parents and will just ask them that why you are putting the videos off, because now my dear students it's time to get serious. छुट्टी छुट्टी देखो, तुम मजा करो, मैं मना कर रहा हूँ क्या? नहीं, हम कभी ऐसा मतलब एंटी स्टूडेंट नहीं बन सकते. ओके, बीइंग टीचर्स वी आर नॉट अगेंस्ट द स्टूडेंट्स, वी आर इन फेवर ऑफ द स्टूडेंट्स. बट व्हाट आई विल से, if you were studying 5 hours in school, now the school is having just 1 hour lecture. Focus ना, focus है ना, concentrate. 5 घंटा स्कूल जाकर पढ़ रहे थे, अभी सिर्फ 1 ही घंटा हो रहा है, पढ़ो ना इज्जत से. 5 hours classes were there, 3 to 8, 3 to 8, 3 to 8:30, 5 hours classes were there. If only 2 hours classes has been conducted, focus ना my dear students, concentrate ना. इसके अलावा तुम्हारे लाइफ में इस प्रेजेंट टाइम में कोई इंपॉर्टेंट वर्क है तो मुझे बताओ. At this particular moment, if you are having any other important work than this, just tell me. तुम यहाँ पे बैठे हो, इसमें से कितने लोग हैं जिसको बाहर जाके कमाना है? बताओ मुझे.
नहीं सर, मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, कोरोना का इंजेक्शन मैं ही लगाता हूँ। तो मुझे जाना ही पड़ता है। डू यू हैव एनीथिंग मोर इम्पोर्टेंट वर्क देन दिस? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। सो एट दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ लाइफ इट इज एजुकेशन, तो गिव सम टाइम ना, इट इज नॉलेज, सो परस्यू इट ना, है ना? दैट इज माई रिक्वेस्ट टू यू पीपल। ओके फाइन। अब बात करते हैं ऐप का। तो यस, गूगल प्ले स्टोर तो सबको पता रहेगा, बताने की जरूरत नहीं है। ओके तो गूगल प्ले स्टोर पे हम अगर जाते हैं और ETNX टाइप करेंगे तो ETNX का लोगो आएगा। ओके उसको हम डाउनलोड करेंगे, वो ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे। दैट सिंपल एज यू हैव डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड एनी अदर ऐप। ओके लेकिन रजिस्टर करना, ठीक है, ऑल दोस प्रोसेसेस आर देयर, दैट वी विल शो यू थ्रू अ जूम प्रेजेंटेशन ओनली। ठीक है तो फिलहाल के लिए तुम चाहे तो प्ले स्टोर में जाकर ऐप डाउनलोड करके रख सकते हो। ऐप का बेनिफिट क्या है ना? अभी ऐप खाली क्या ऐसे ही लेके थोड़ी ना रखा है। यू नो वी आर वेरी वेरी लाइक एडवांस, हम समय के साथ साथ बहुत तेजी से आगे चलते हैं। ठीक है क्यों? लास्ट ईयर तक हमने देखा कि जो हमको क्रिटिसाइज कर रहे थे, ओके, पीपल लाइक वर देयर, कुछ बड़े बड़े क्लासेस वाले थे, वो हमको क्रिटिसाइज कर रहे थे, बोल रहे थे कि ये लाइव लेक्चर्स लेते हैं, लाइव लेक्चर्स में कभी नेट का प्रॉब्लम होता है, कभी डेटा का प्रॉब्लम होता है, इसीलिए हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर ही लेंगे, हम रिकॉर्डेड ही सेंड करेंगे। दिस वाज देयर स्टेटमेंट। why they were saying like this? because they didn't wanted to go live, वो लाइव जाने से डर रहे थे। they didn't had that much of courage कि वो सामने स्टूडेंट्स को फेस करे, स्टूडेंट्स के पीछे पेरेंट्स को फेस करे। they had fear, डर था उनको, because they were lacking in the knowledge, I think so ना। जब मेरे पास ज्ञान अच्छा है, मेरे पास ज्ञान है देने के लिए, तो why should I fear? आई नो दैट आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई एजुकेशन, मैंने अच्छा पढ़ाई किया है, मैंने अच्छा नॉलेज परस्यू किया है, तब मैं दे सकता हूँ। दिस कॉन्फिडेंस शुड बी देयर इन मी, देन व्हाई आई शुड फियर फॉर गोइंग लाइव? क्यों डरना है मुझे? क्यों मैं रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके फिर मैं सेंड करूँ? क्या जरूरत है? दोज पीपल हु सेड दैट लाइव इज नॉट गुड, रिकॉर्डेड इज गुड, आप फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड कर सकते हो, नाउ दोज पीपल हैव आल्सो स्टार्टेड अडॉप्टिंग लाइव लेक्चर्स। अब वो आज के डेट में प्रमोट करते हैं कि यस हम लाइव लेक्चर ही कंडक्ट करते हैं करके। क्यों? किधर गया तुम्हारा रिकॉर्डेड लेक्चर? करो ना, वही करो ना। नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज दे थॉट दैट रिकॉर्डेड इज गुड एंड वी थॉट कि लाइव इज गुड। ओके हमने इसीलिए लाइव लेक्चर्स कंडक्ट किए, वी हैड recordings of all those lectures also, and we were consistently uploading it in the YouTube channel also. Okay only the thing is that the link will be accessible only to the students, है ना? जो excellent के students है उनको ही access रहेगा, वो सबको नहीं मिलता, ये बात होती है। ठीक है तो जब कभी तुम कोई अगर लेक्चर मिस कर देते हो, if at all you miss any lecture, you just have to note down the date, lecture, डेट और लेक्चर नोट करना है। immediately by evening you can put a message to me or to Keshav sir. okay Keshav sir अपने क्लास के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को संभालते हैं and he may be taking PS also to you people. okay तो केशव सर को या मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो कि सर सो एंड सो डेट का, मतलब जैसे आज का डेट है तो 10th May 21 का ओरिएंटेशन लेक्चर, यू विल गेट अ वीडियो ऑफ दिस, तुमको उसका वीडियो मिल जाएगा, देखो जितनी बार देखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर लाइव देखना, लाइव लेक्चर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू टेल मी नाउ इफ आई एम टॉकिंग विथ यू और इफ आई एम टीचिंग समथिंग टू यू एंड यू कम अक्रॉस अ डाउट, तुमको कुछ से डाउट आया, लाइव में पूछ सकते हो, रिकॉर्डेड में कैसे पूछोगे? कैसे पूछोगे? पॉज करोगे, पूछोगे, वो जवाब देने वाला है। इज द टीचर गोइंग टू आंसर यू? हाउ इज इट गोइंग टू बी पॉसिबल? सो इट इज वेरी एविडेंट एंड क्लियर, इसीलिए हम लोग लाइव लेक्चर्स कंडक्ट कर रहे हैं पिछले साल से, वेंट वेरी स्मूथली।
there were some flaws, we came to know about those things, we have rectified those flaws, उस चीजों को हम लोग ने अभी इम्प्रोवाइज किया है, ओके, एंड उसके ऊपर हम लोग कंसिस्टेंटली और अच्छे से वर्क कर रहे हैं. अब तुम पूछोगे सर क्यों, आपको क्या लग रहा है ऑफलाइन चालू ही नहीं होगा क्या? आई डोंट नो, ऑफलाइन 3 महीने में होगा, 6 महीने में होगा, मुझे नहीं पता है ना. फर्स्ट वेव आया, सेकंड वेव आया, थर्ड वेव आएगा, कितना वेव आएगा पता नहीं है. And this further waves are proving little not good for the young ones. Okay, छोटे बच्चों लोग के लिए अच्छा नहीं है, इसीलिए रिस्क तो कोई नहीं उठा सकता. Even I won't take any risk of bringing you kids to the class unnecessarily, okay, and putting your life in danger. तो बिल्कुल नहीं, वो तो नहीं होगा. तो हम लोग ऑनलाइन में ही जाएंगे, जब तक ऑनलाइन बोला जा रहा है तब तक. जिस दिन हमको दिखाई दिया, मतलब मेरे को तो पता है, जिस दिन कल्याण ईस्ट का डेटा तुमको अगर दिखाई दिया बिलो 20, क्या बोल रहा हूं, बिलो 20, मान लो कि ऑफलाइन क्लास शुरू. समझे क्या? दैट इज द कॉन्सेप्ट. आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर एनी गवर्नमेंट डिसीजन एंड ऑल, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड कि हाउ डेटा मैनिपुलेशन भी होता रहता है, ये लोग गड़बड़ करते हैं. So all those things are there. But when we come to know कि yes, we can go ahead, green signal मिल दिख रहा है हमको, we will start, no doubt in that. Okay, fine. ऐप का यूज बताता हूँ. ऐप से हम लोग को क्या बेनिफिट मिलेगा? ऐप में तुमको नोट्स वगैरह मिल सकता है, डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स जो फिजिकली देना पॉसिबल नहीं होता है, वो तुमको ऐप में मिलेगा. Again, you will be getting the notification, you will get the updates. तुमने टेस्ट लिखा, टेस्ट के मार्क्स तुमको ऐप में रहेगा. You cannot delete those marks, डिलीट नहीं कर सकते हो, ठीक है, वो हमारे कंट्रोल में रहेगा. Your parents will receive message, you will receive the message. सर डरा रहे हो आप तो, हमको लटकाने के पीछे पड़े हो. Nothing, my dear students. ऐसा क्या है बताओ ना, क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? If we are परफॉर्मिंग, हैव दिस फेथ ना कि ओके, अगर शुरुआत में कम मिला तो ठीक है सर, आपके गाइडेंस से हम लोग आगे और अच्छा लाएंगे, हमको इतना भरोसा है. हैव दिस थिंग इन यू, हैव दिस कॉन्फिडेंस इन यू, रादर देन थिंकिंग नहीं नहीं ये तो एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स तो बहुत डेंजर लग रहा है बाबा, ये लोग तो सब पकड़ लेंगे हमको. व्हाई? वी आर नॉट विलन्स ओवर हियर. हम लोग यहाँ पे विलन्स बिल्कुल नहीं है. वी आर हियर टू हेल्प यू टू द मैक्सिमम. ओके, जितना अच्छे से होगा उतने अच्छे से हम लोग हेल्प करने के लिए यहाँ पे है. ओके, सो नेवर एवर फील टू बी वरीड. बिल्कुल चिंतित मत हो. कभी भी कुछ भी अगर ऐसा लगा, बिंदास एक मैसेज और या एक कॉल, एक मैसेज या एक कॉल, जो अपने मतलब आई से एवरी टाइम दैट 99% ऑफ योर प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व्ड बाय मी. 99%, ओनली 1% कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड. बोलोगे सर 1% को क्यों रखा है करके? अभी कुछ लोग होते हैं जब प्रॉब्लम होता ही नहीं है और उसको प्रॉब्लम करके पकड़ के बैठते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं बताओ? अब एग्जांपल के लिए, solution to the problem is very simple. I'm taking you much time, but within 2 minutes we will just end up. Okay, solutions to the problems are very simple. कैसे सर, कैसे? मान के चलो कि मुझे कोई तो प्रॉब्लम है. ओके, मुझे कोई तो प्रॉब्लम है and I have a solution for that. I know what is the solution for that. Then why I have to worry? प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन है, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हारे पास है, तो वरी करने का जरूरत क्या है? क्यों चिंता करने का? वो सॉल्यूशन को फॉलो करो ना, प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व्ड. यस और नो? अब उल्टा सोचते हैं, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है. प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है. नहीं है ही नहीं. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही नहीं है, तो फिर क्यों वरी करूं? क्योंकि वो प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है ही नहीं. Then why to worry? Getting me? So at the end, the conclusion is, if you are having a problem and a solution, don't worry. If you are having a problem and you don't have a solution, then also don't worry, because nothing is going to change. कुछ बदलने वाला नहीं है. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो ठीक है, अच्छी बात है. नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम होने वाला है? यस, this should be the approach, my dear students. Okay, so never ever be afraid
from us. बिल्कुल मत डरो. We are here to help you people to cope up in your studies and to improvise your marks to the best. Okay. The good thing is that I can see over here that the students who are there on the screen, they are actually very much the ones who are very much interested in studying. That is the most important thing. मतलब मुझे स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं बच्चे लोग, मैं देख सकता हूँ और ये वो बच्चे लोग हैं जो एक्चुअल में पढ़ना पसंद करते हैं. So that is a encouragement for teachers. That is an encouragement for us. Okay? क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना. ताली दो हाथ से बजता है. एक हाथ से ताली बजेगा क्या? ऐसा कोई बजा के देखो. एक हाथ से खाली झापड़ बजता है, ताली नहीं बजता है. बराबर है कि नहीं? यस. सबरिश तुरंत गाल पे हाथ रख लिया. ओके फाइन. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐप डाउनलोड करना है तो कर सकते हो. ठीक है. नितेश शेट्टी, इफ यू कम ऑन द माइक. Nitesh, are you there? Yes. And if at all, my dear students, anytime I call your name, try to come on the mic, unmute yourself and have a talk with me. Okay? I think so. Nitesh is not there. No? Fine. Network connectivity problems are there. Try to resolve it. एक अच्छा network connection का ले लो, SIM या Wi-Fi connection जो भी है available वो करो. Because it is high time now. Okay? कि नेटवर्क का प्रॉब्लम अब हम लोग को और परेशान ना करें. ठीक है. तो वो सब चीज़ों को रिजॉल्व करके लो. डेटा एंड ऑल, एक अच्छा डेटा डालो, मतलब 3 महीना चले ऐसा डेटा डालो. एंड इट इज नाउ वेरी मच बूस्टर पैक सर्च करो. ठीक है. बूस्टर पैक में क्या रहता है? डेटा भरपूर मिलता है. हमको कॉलिंग तो कुछ काम का नहीं है ना वैसे. नहीं, बूस्टर पैक्स देखने का और बूस्टर पैक्स रिचार्ज करना है. ठीक है. ओके. और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो. अब तुम्हारी बारी. मैंने तो बहुत बड़बड़ किया. Now you can ask if you are having any doubt, any query. Yes. Sabrish, any doubt? Yaneshwari? Elvin? Yes, Elvin. Elvin unmute करने की कोशिश कर रहा है. Okay, wait, I'll try to unmute you. Who, Elvin? Unmute? Yes, sir. Yes, Elvin. No doubt, sir. No doubt, sir. Very good. That's good. Okay. So timing of lecture. Lecture timing will be from 4 to 6. Okay, ये timing हम लोग सोच रहे हैं. But till the time your school is not starting, we are also planning for keeping the lectures in the morning time itself. तो सुबह में 10 से 12 वगैरह लेक्चर हो जाएगा. Then after that entire day you can be free. Free मतलब क्या? फ्री मतलब क्या? वैसे तो हो ही फ्री. मीन्स यू कैन रिलैक्स फॉर द एंटायर डे. देयर वोंट बी एनी प्रेशर कि बाबा दोपहर को लेक्चर है, शाम को लेक्चर है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, है ना. तो टिल द टाइम द स्कूल डजंट स्टार्ट वी कैन थिंक ऑफ टेकिंग द लेक्चर. बट फॉर कपल ऑफ डेज, एक 2-3 दिन तो फिलहाल यही टाइम पे रहेगा. ठीक है. 4 to 6. ओके. आफ्टरवर्ड्स वी विल स्विच द टाइम. ओके. एनी अदर डाउट? ऐप के बारे में बताया. प्ले स्टोर में जाओ, ETNX का ऐप है. जस्ट डाउनलोड एंड कीप. रजिस्टर मत करो. करोगे तो भी कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हमको ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा तो ही तुम अंदर आ पाओगे. ओके. इट इज लाइक क्लोज डोर. दरवाजा बंद है, तो तुम दरवाजे पे आके खड़े रहोगे तो थोड़ी ना दरवाजा खुलेगा. क्या करना पड़ेगा? बेल बजाना पड़ेगा या तो नॉक करना पड़ेगा. तो यस, वो बेल कैसे बजाने का, नॉक कैसे करने का, दैट वी विल लेट यू नो. ओके. एंड टू मेक द ऑनलाइन लेक्चर्स इंटरैक्टिव, एज आई सेड, एक अच्छा जगह पकड़ लो घर पे जहाँ पे कोई आवन जावन नहीं है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है. यूज ईयरफोन्स टू द मैक्स. ईयरफोन यूज करो एंड ट्राई टू कीप योर वीडियोज ऑन.
आज ओरिएंटेशन था, कुछ लोगों ने वीडियोस ऑफ रखा है. आई एम नॉट हैप्पी अबाउट दैट थिंग. आई एम नॉट हैप्पी, ओके, क्योंकि वीडियोस ऑन रखना है, मैंने कई बार बोला है. नेक्स्ट व्हेन lectures will be there, I want everyone's video to be on. ओके, सबका वीडियो ऑन होना चाहिए. अगर वीडियो ऑन नहीं रह रहा है तो ऑब्वियसली तुम्हारे घर पे पेरेंट्स को फोन आएगा आस्किंग फॉर द रीजन why the video is off. So you should be having a genuine reason for that. Okay, so before that check your data connections and all. Okay, and yes, we have ordered notes for you people. Excellent tutorials की तरफ से तुमको notes मिलेगा. Notes order किया गया है. जैसे हमको possession मिलता है, we will let you know. Okay, and how you will get the delivery of the notes, that all will be conveyed to you, but it is going to take at least a week or 10 days. Okay, हफ्ता भर तो भी लगेगा. Fine. So anything else? और कुछ पूछना है my dear students? It's 5 o'clock. टाइम टू टाइम काम करेंगे. एंड एज आई सेड, जो बातें मैंने बोली सब चीजों को ध्यान में रखो, ठीक है? और नहीं सर ध्यान में नहीं रहा, वापस एक बार बोलो. तो यस, आई एम गोइंग टू put on the YouTube link of this video. You can